Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Prashant Banerjee and you are watching Automania. Guys, I have with me Hero Xtreme 160R, the latest 2023 edition, and this is the connected variant. We have the basic standard one, the connected, and then the premium or the pro variant. So this is the mid-range variant, which is the connected one, and we shall ride it out and find out more about this bike. And as claimed by Hero, this is the fastest 160cc motorcycle in the Indian market. So it's time to find out. And if you like what we do, you know what to do. Like, comment, share and subscribe to Automania, guys, for contents like this. So let's get started. And yes, this is how the bike looks. इसके बारे में और भी बात करेंगे, डिटेल्स में बात करें, कैसे चलती है, कैसा लगता है ये बाइक एंड हाउ डज इट फील. उससे पहले हम लोग छोटी सी राइड कर लेते हैं, उसके बाद मैं ओवरऑल वॉक अराउंड और सब कुछ आपको दूंगा. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वेट तो बहुत ही लाइट है, 146 किलोस, एकदम हेवी नहीं है. हैंडल बार्स फील्स गुड. ये एग्जॉस्ट थोड़ी सी चेंज हुई है पहले से. तो ओके, गाड़ी बंद होगा क्योंकि साइड स्टैंड ऑन है. गुड सेफ्टी फीचर, ये तो आजकल सब बाइक में आती है, मेरे ऐसे बंदों के लिए स्पेशली, जो कि स्टैंड उठाना भूल जाते हैं. So let's go. One second, let me push now. Oh my god, this is properly fast, man. Speedometer is not connected, but it is easily over 120 right now. गाड़ी इतना फास्ट है कि मुझे 6 गियर की जरूरत पड़ रही है. ओह माय गॉड, लवली लवली. The power is ample, man. पर थोड़ा सा बजिंग है हाई आरपीएम में, मतलब अराउंड 6,700 आरपीएम में थोड़ी सी फुट पेक्स में थोड़ी बजिंग हो रही है. अदरवाइज बाइक इज डेडली स्मूथ. इंजन तो बहुत ही स्मूथ है, मैन, बहुत ही स्मूथ है. The brakes feel really okay-ish. Could have been better. Okay, yeah, could have been better. Single channel ABS on offer. That's the, you know, take it or leave it. That's what Hero says. It's only single channel ABS as of now. But dual channel ABS होती तो बहुत ही अच्छा होता. मनूवर तो अच्छे से मैं कर रहा हूँ इस बाइक पे, नो प्रॉब्लम. और एक सबसे एडेड एडवांटेज इज़ दी वेट. इतनी हल्की बाइक है गाइस कि मज़ा आ रहा है चलाने में. ओके, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं चले जाता हूँ. This is fun, man. This is proper fun. Oh yeah, brake now. Brake. Okay. Ooh. I am loving this, man. I am loving this. This is making me fall in love with it once again. पहले एक ज़माने में एक्सट्रीम मेरा क्रश था, जब 2007-8 में आया था. अभी फिर से एक्सट्रीम में मज़ा आने लग गया है. This is properly, you know, fast machine. 160cc में एक हीरो ने जो कहा था कि it's one of the fastest bike in the country, गलत नहीं कहा था, क्योंकि the engine is so much faster. It's refined. It's giving a proper feedback from the engine. The engine is responsive. The throttle response is too good, man, too good. शायद वो टॉप वेरिएंट में वो किया जाएगा, मतलब जो USD फोक्स है उसमें शायद मज़ा और भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें USD फोक्स आएगा और प्लस सस्पेंशन भी इम्प्रूव्ड है. KYB का है एक्चुअली, तो शायद उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी. Guys, after this short and furious ride, we are here with the overall review of this bike. First thing first, it looks beautiful. It looks fast even if it's standing. The tank shape has changed little bit. यहाँ पे थोड़ा बल ज़्यादा बड़ा हो गया है. The fit and finish जो क्वालिटी है इस बाइक की, सर इम्प्रूव्ड अ हेल लॉट. पहले जो मॉडल आती थी उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड मॉडल है ये. ओवरऑल अगर सामने से बात करें, इट्स ऑल LED हेडलैम्प्स, LED इंडिकेटर्स, और इवन एट द बैक यू फाइंड LED tail lamps, smoked out tail lamps that look smart, that looks handsome.
Overall, this is how the bike looks. I'll just give you a walk around. So this is how the bike looks from all angles. और कोई भी एंगल से दिस बाइक लुक स्मार्ट। इसका जो सबसे मेन कॉम्पिटिटर है जो कि है Apache 164V। यार इट्स अप टू यू, कौन सी आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है लुक्स, ये है वो। मेरे ख्याल से अगर मुझे चूज़ करना होगा सो लुक वाइज दिस बाइक लुक्स ट्रेमेंडस, इट लुक्स ब्यूटीफुल। बात करते हैं इंजन के बारे में, उससे पहले जस्ट एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए। ये इसके एग्जॉस्ट नोट, I'll just switch off the bike. Okay, exhaust note has also changed. It's a bit bassier this time. इंजन की बात करते हैं तो it is 163.2 cc single cylinder oil cooled engine which is turning out a power of 16.9 PS and peak torque है 14.7 न्यूटन मीटर्स। टॉर्क रेंज जो है वो बहुत ही लो और मिड रेंज से आपको मिल जाती है, अराउंड 4000 RPM एंड एट दैट रेव रेंज इट कीप्स ऑन पुलिंग। आप बहुत ही ईजिली इस बाइक को पुल कर सकते हो इन एनी गियर्स। और टॉर्क की मशीन, सबसे बड़ा चेंज जो इस बाइक पे आया है वो है दिस 4V बैजिंग। बस बैजिंग चेंज नहीं हुआ, इंजन के अंदर भी चेंज हुआ गाइस। इट इज़ अ 4 valve वेरिएंट नाउ एंड द बाइक इज़ मच स्मूदर और वाइब्रेशंस बहुत ही कम है। बस हाई एंड में जब बाइक चला रहा था, हाई एंड में मतलब 8000 के बाद शायद थोड़ी सी मतलब फुट पैक में थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा था, अदरवाइज देयर इज नो वाइब्रेशन एज सच। इज वेरी स्मूथ मशीन। और यहाँ पे दिस वेरिएंट में अभी नाउ जो ये जो मॉडल लॉन्च हुई है इसमें आपको ये बेली पैन मिलता है नया वाला, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4V। इस साइड भी है, उस साइड भी है एंड इट लुक्स क्वाइट स्मार्ट। और नीचे ये बेली पैन, इफ यू कैन सी दैट्स द बेली पैन एंड दैट्स द काउल, लुक्स क्वाइट स्मार्ट। ओवरऑल टायर्स की बात करते हैं, सामने है 100 सेक्शन C8 के टायर्स, रियल में है 130 सेक्शन टायर्स। पीछे अगर 140 होती तो शायद थोड़ा सा अच्छा रहता, तो लेकिन हाँ हम लोग को 130 मिलता है। इस 130 एट द रियर, 276 millimeters disc up front and 220 millimeter disc at the rear with single channel ABS. That's a huge miss by Hero once again. I don't know why companies इतना spend करती है, थोड़ा सा 5-7 हज़ार ज़्यादा लेके dual channel ABS क्यों नहीं ऑफर करती। But yes, I still miss out the dual channel ABS. That's the only flaw and fault which I find in this motorcycle right now. So dual channel ABS and this is a connected model which means आपको यहाँ मिल जाती है ब्लूटूथ और around 20-25 फीचर्स आपको मिलेगी एक्स्ट्रा, जैसे SOS कनेक्शन, एक्सीडेंट अलर्ट्स, सर्विस रिमाइंडर। यू कैन बुक द सर्विस थ्रू योर ऐप। हीरो ऐप के थ्रू आप बहुत ही एक्स्ट्रा काम बहुत कुछ कर सकते हो जो कि कनेक्टेड मॉडल में आती है। और स्टैंडर्ड मॉडल अगर देखोगे आप उसमें तो कुछ डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट दिस बैजिंग। इसमें कनेक्ट बैजिंग है, उसमें बैजिंग नहीं है, लेकिन इसमें जो फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ये स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको मिल जाती है, स्पीड, न्यू गियर पोजिशन इंडिकेटर, टाइम, ओडो, SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट्स और बहुत कुछ आपको ये ब्लूटूथ एडिशन आपको दे देगी। पर मजे की बात ये है अगर आप टॉप एंड लेते हो उसमें एक ही एक्स्ट्रा फीचर आती है, दैट्स USD फोक्स बाय KYB। और दूसरा फीचर है आपका स्प्लिट स्टाइल सीट। 2 एक्स्ट्रा फीचर मिलेगी, लेकिन आपको जो कनेक्टेड फीचर है वो आपको नहीं मिलेगी। आपको बस बेसिक ब्लूटूथ फीचर मिलेगा लाइक कॉल एंड SMS अलर्ट, दैट्स इट। आपको जो एक्स्ट्रा SOS एंड जो एक्सीडेंटल जो मैसेज आ जाती है, SOS अलर्ट आ जाती है, सर्विस रिमाइंडर एंड ऑल, वो सब एक्स्ट्रा फीचर्स वो टॉप एंड वेरिएंट में नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको अच्छा फ्रंट सस्पेंशन चाहिए तो आपको टॉप एंड के मॉडल पे जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आप मिस कर जाओगे कनेक्टेड फीचर्स। लेकिन इफ़ दैट डजंट मैटर, दिस इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर यू। यहाँ पे आपको फुल कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएगी। और जो बेस वेरिएंट है, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट, वहाँ पे आपको मिलेगा कोई फीचर नहीं आएगा एक्चुअली। वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसा फीचर, लाइक USD फोक्स भी नहीं मिल रहा फ्रंट में एंड कनेक्टेड फीचर भी नहीं मिल रहा। दैट्स ओनली द बेसिक बाइक। Even that is not bad. If you're not so much interested in the connected features, then I think that's the best model for you. मुझे सबसे अच्छा लगता है आजकल जो कंपनी जो ये हैज़र्ड सिस्टम, हैज़र्ड इंडिकेटर्स का सिस्टम एक स्विच दे रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यार देना चाहिए ये सिस्टम, सब बाइक्स में लगना चाहिए यार। सो एनीवेज इसको ऑन रखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको देख सकते हो SOS स्विच, कैन सी इसके नीचे एक बटन है, यस दैट SOS स्विच। यहाँ पे नॉर्मल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, हैज़र्ड लाइट स्विच। यहाँ पे आपका बेसिक स्विच गियर मिल जाती है, नथिंग फैंसी। क्वालिटी ऑफ द स्विच गियर्स है वो बेसिक है एंड क्लच फील्स इन द बिट ऑन द हार्डर साइड, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है। यहाँ पे स्लीपर क्लच तो मिलते नहीं है, ज़्यादा हार्ड सॉफ्ट नहीं, इट्स अ बिट ऑन द हार्डर साइड।
और ओवरऑल अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो ये बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट्स अराउंड 165 millimeters. I'll just show you. Yes, it's 165 millimeters, good enough for Indian road. Seat height है 795 millimeters. टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है अराउंड 12 लीटर्स और जो माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बाइक से दैट इज अराउंड 45 to 50 kilometers to a liter. Very easily you can churn it out from this bike, guys. और अगर बात करते हैं अबाउट द बाइक रोड पे, बाइक का रोड प्रेजेंस और रोड फील, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट, जब आप चलाओगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा फ्लिकर अराउंड करने में इन ट्रैफिक, बिकॉज इट्स वेरी लाइट, 146 kg टू बी एग्जैक्ट. सो येस, आपको वहाँ पे मज़ा आने वाला है. और एक फीचर तो आपको पता ही, सब रेंज में सब बाइक में आता है, दैट इज अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स. सो पंचर हो भी गया तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, अनलाइक मेरा बाइक GT जहाँ पे पंचर हो गया तो बात खत्म. और एक पॉइंट गाइस, इफ़ यू नोटिस केयरफुली, द हेडलाइट डिज़ाइन इज बिट रिवाइज्ड, थोड़ी सी नीचे, हाइट थोड़ा सा नीचे. और यहाँ पे जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, यहाँ पे आप eSIM भी एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि वेरी हेल्पफुल है. सो येस, दीस आर द मॉडर्न फीचर्स लाइक eSIM एंड कनेक्टेड फीचर्स. ये तो धीरे धीरे सब बाइक्स में आ ही जाएगा बाई नेक्स्ट 5 or 6 years, क्योंकि दिस आर ऑल लाइफ सेवर्स. अभी तो शायद आपको प्रीमियम देना पड़ेगा ऐसे फीचर्स के लिए, लेकिन धीरे धीरे दैट विल गेट स्टैंडर्डाइज्ड. ये जो इंजन है दैट इज E20 कंप्लाइंट BS6 स्टेज 2 इंजन एंड इट्स ग्रीनर एंड दिस इज मीनर. और जो एग्जॉस्ट डिज़ाइन थोड़ी सी मुझे चेंज लग रहा है, पहले मॉडल थोड़ा सा अंदर की ओर थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, और साउंड भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है. आपने ऑलरेडी एग्जॉस्ट नोट सुन लिया है. तो एक अच्छा फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज स्मोक्ड आउट टेल लैम्प्स. दैट लुक्स ब्यूटीफुल. जब बंद रहती है डजंट लुक इवन, लगता भी नहीं है कि यहाँ पे कोई टेल लैम्प्स है. सो ये ब्लैक्ड आउट टेल लैम्प्स मुझे बहुत अच्छे लगती है. इंडिकेटर्स आर रियली ब्राइट और बहुत ही दूर से आप देख सकते हो इंडिकेटर्स को अच्छे से. विजिबिलिटी बहुत अच्छी है. हेडलाइट्स की बात करें तो अभी तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन आजकल का जो LED हेडलैम्प्स आ रही है सब बाइक्स पे आ रही है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ देम एट ऑल. लुक्स में बहुत ही बढ़िया है, लुक्स फैंटास्टिक गाइस, बट काम है उतना अच्छा नहीं है. जो प्रॉपर हैलोजन बल्ब था वही अच्छा था एक्चुअली भाई, काम के हिसाब से अगर देखें तो. लेकिन हाँ, इसमें तो नॉर्मल हैलोजन लाइट सबको अगर अच्छा नहीं लगा तो वो आपको चेंज करके कुछ मॉडर्न लाइट लगा सकते थे, कुछ अंदर LED लाइट लगा सकते थे, नाइट टाइप वगैरह आप लगा सकते थे. लेकिन इस मॉडल में आप कुछ भी नहीं लगा सकते. दिस इज ऑल LED सेटअप ओनली. अगर लाइट अच्छा नहीं है तो ओनली थिंग यू कैन डू इज गो फॉर एक्सेसरीज लाइक आफ्टर मार्केट से आप अच्छा सा फॉग लैम्प्स लगा लो and you can get your work done. Otherwise right now कोई भी बाइक, not only हीरो, TVS और even Royal Enfield जो आजकल LED बाइक हेडलैम्प्स लाए है, I'm not a fan of those. कार्स में तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो गई है. Baleno, like for example Baleno, Lexon, they offer amazing visibility through the LEDs, but बाइक्स पे अभी इंप्रूवमेंट होना बाकी है क्योंकि थ्रो बहुत ही पोर है. लाइक इवन इन अगर आप एक्सपल्स देखो, एक्सपल्स का थ्रो भी बहुत ही पूरे. रात में आपको ऑक्सिलरी लैम्प्स तो 100% चाहिए होगा. आई एम वेरी श्योर कि यहाँ भी इसमें भी केस सेम ही होगा, नथिंग डिफरेंट, बट येस दैट इज़ व्हाट इट इज़. अच्छे की बात करें कि बाइक्स हैव इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली फ्रॉम बिफोर. ही हैज़ इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ द स्विच गियर्स, ऑफ द ओवरऑल पेंट मटेरियल्स एंड ऑल. यहाँ पर अगर दिखाते हैं पेंट फिनिश बहुत ही अच्छा है. ये फिनिश बहुत ही अच्छा है. ये प्लास्टिक क्वालिटी पहले से अच्छा हुआ है. सो येस, with time Hero has also stepped up with their quality, so I don't know what to say about it. And yes, this is the catalytic converter जो कि आपको मिल जाती है BS6 Stage 2 compliant बाइक के साथ. ये हेड का डिज़ाइन भी चेंज हो गया है. इट्स गोल्डन कलर राइट नाउ, और टॉप एंड में शायद रेड आता है प्रो वेरिएंट में, आई थिंक सो. एनीवेज इस 4 valve मॉडल है तो स्मूथनेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इस इंजन में एमिशन भी ज़्यादा कम हो जाता है. एंड येस, दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस बाइक. एंड दिस वॉज द वॉक अराउंड. आई होप मैंने सब पार्ट कंप्लीट कर दिया है. लुक्स, स्टाइलिंग, इंजन, कंफर्ट, इट्स वेरी कंफर्टेबल. स्प्लिट स्टाइल सीट से मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगा. तो कंफर्ट भी बहुत अच्छी है. वेट भी बहुत ही हल्का है, 144 kg टू बी एग्जैक्ट. वेट भी बहुत ही कम है, तो पावर टू वेट रेशियो जो है बहुत अच्छी हो जाती है. जहाँ पे अपाचे थोड़ा हेवी है इससे, और अगर कंपेयर करें पावर भी उस पर बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है. लेकिन पावर टू वेट रेशियो अगर कंपेयर करें तो शायद ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती है. सो अपाचे के साथ कंपैरिजन करने में इसके साथ बहुत ही मज़ा आएगा गाइस. दोस्त अपाचे 160 4V एंड एक्सट्रीम 160 R4V, these are very closely fought machines. Yes, that's it about the overall review guys. Actually overall walk around and
सब पॉइंट्स कवर हो चुकी है। बात करते हैं प्राइसिंग की, अवेलेबिलिटी की, कलर्स की। तो चलिए बात करेंगे बाइक पे चढ़ने के बाद, फिर से राइड पे चलते हैं और बात करेंगे मोर अबाउट दिस व्हीकल। तो प्राइसिंग जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस मॉडल का है कनेक्टेड वेरिएंट, नीचे आती है बेस वेरिएंट और स्टैंडर्ड, और टॉप एंड है आपका प्रो वेरिएंट। सो स्टैंडर्ड, कनेक्टेड, प्रो, 3 वेरिएंट्स। अगर बेस वेरिएंट की बात करते हैं और स्टैंडर्ड वेरिएंट की, वो स्टार्ट हो जाती है अराउंड 1,30,000 एक शोरूम। एग्जैक्ट प्राइसिंग नीचे आ जाएगी। और टॉप एंड वेरिएंट है जो कि है प्रो वेरिएंट, जहाँ पे आपको कनेक्टेड फीचर्स नहीं मिलता है बट यूएसडी फोक्स मिल जाता है। उसमें आप वो अराउंड 8,000 to 9,000 रुपीज़ कॉस्टलियर है इस मॉडल से, बेस मॉडल से कॉस्टलियर है। सो येस, इट्स अप टू यू। अगर आपको कनेक्टेड फीचर्स ज़्यादा अच्छा लगता है तो गो फॉर दिस कनेक्टेड वेरिएंट, और अगर आपको राइडिंग डायनामिक ज़्यादा पसंद है तो गो फॉर दी टॉप एंड प्रो वेरिएंट। गाइज आई एम वेरी श्योर वहाँ पे फ्रंट एंड फील कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन द कॉर्नर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो उसके लिए आप जा सकते हो। टॉप एंड प्रो वेरिएंट में अगर वो फ्रंट एंड फील और कनेक्टेड वेरिएंट्स आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, ये ब्लूटूथ वगैरह, यू आर नॉट फैन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, देन यू कैन गो फॉर द बेस वेरिएंट और द स्टैंडर्ड वेरिएंट, जो कि आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो ये इसका प्राइसिंग, डिटेल प्राइसिंग नीचे लिखा हुआ है। और अगर आपको कोई हीरो बाइक्स चाहिए in Durgapur region, you can get in touch with Datta Automobiles Private Limited. The details are in the description box, and I thank them for their continuous support to Automania by providing with bikes for reviews and even rides के लिए भी मुझे देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं मेरे राइड्स के लिए। So big thank and shout out to Datta Automobiles Private Limited. The details are in the description box, और also नीचे आ रहा है फ़ोन नंबर। अगर आपको क्वेरीज है, you can get in touch with them and call this number. Till then, it's time to wrap up this episode of Automania. If you liked it, you know what to do. Like, comment, share, subscribe to the channel. Before ending, as I always say, wear helmets when you're riding, wear seat belts while driving, and never drink and drive, guys. Never drink and drive. This is Pushpin Banerjee. You are watching Automania. Signing off. Tada.